over, IUPAC name is over, nature of bonding is over. Now preparation. In preparation there are three: alcohol, hydrocarbon, halogen exchange. I am going to discuss the first one which contain the 6 reaction, जिसमें 6 reaction है. Now see, this is again from your NCERT book. See, this all is containing OH. So this is alcohol. This is alcohol. This you know from class 10th, organic compound, carbon compound. So here it is written from alcohol. So we need to convert this alcohol into haloalkane. हमको इस alcohol को haloalkane में convert करना है. So for that we have 6 reactions. So first reaction in this slide, first reaction is PCl5, second is PCl3, third is HX, and here first is given HX. तो ऊपर नीचे हो सकता है, but all are similar. Now see carefully, जो बताया जा रहा है उसको ध्यान समझिएगा. When any alcohol, I am saying, when any alcohol, that's why ROH is written there. No any particular alcohol is written there कि only methanol, only propanol, only butanol, nothing like that. Any alcohol, ROH, react with HX, in the presence of ZnCl. This will be your statement. Remember this. First heading, you will take preparation of haloalkane. First of all, you will write the heading. Listen, अपने notes में कैसे लिखेंगे? Heading will be there, preparation of haloalkane. Then you will draw this chart. आप इस chart को draw कर दोगे. After drawing this chart, you will write the first number from alcohol as it is written here from alcohol. This you will write, यहाँ पे तो ऊपर नीचे आपका है, you will write the first number by reaction with HX in presence of ZnCl2. This will be your subheading, by reaction with HX in presence of ZnCl2. Now then after you will write the statement, when any alcohol react with hydrogen halide HX, ठीक है, in presence of ZnCl2, then what will be happen? See, this OH will be go with H. H के साथ चला जाएगा and X will be comes at the place of OH. X OH की जगह चला आएगा and OH will be moved with, means you can say double displacement type. In organic chemistry you are saying this double displacement. In organic chemistry में आप इस process को double displacement कहते थे कि its ion will be replaced with that ion. So here is same, but it is organic chemistry. So organic chemistry में that is not double displacement, that is called substitution. Organic chemistry में this substitution, remember, जिसको आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हो, यहाँ पे उसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. रिमेंबर क्लास 10th में जो फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल रिएक्शन डिफरेंट टाइप का बताया गया था, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन. तो यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग इन ऑर्गेनिक, नॉट इनऑर्गेनिक. वी आर डिस्कसिंग ऑर्गेनिक. सो ऑर्गेनिक में डिस्प्लेसमेंट वर्ड नहीं यूज होता है, ऑर्गेनिक इज सब्स्टिट्यूशन. सो दिस ऑल आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये पूरा रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप जानते हो कि सब्स्टिट्यूट मीन्स वन कैन बी यूज एट द प्लेस ऑफ अदर. एक की जगह पे दूसरे को यूज करना, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट. उसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट कहते हैं. नाउ सब्स्टिट्यूट में हो क्या रहा है? द OH इज सब्स्टिट्यूटेड बाय X. OH जो है X से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, मीन्स OH को X डिस्प्लेस कर रहा है. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन. सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो सिंपल सा यू कैन सी RX, ये बन जाएगा RX
ठीक है, एंड H and OH will be form H2O. H और OH, you need to see this कि which part is going with which part, कौन सा पार्ट किसके साथ जा रहा है, ठीक है। यू नीड टू सी दिस, आपको ये देखना है कौन सा पार्ट किसके साथ जा रहा है, एंड योर प्रोडक्ट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, आपका प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा, आपको ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। सो मनीष, माय वॉइस इज क्लियर? मनीष? Yes, sir. Okay, thank you, Manish. If anyone have any problem, immediately unmute and tell. So this is, so अब आपको क्या है यहाँ पे x क्या हो सकता है, ठीक है। So x तो आपने 4 पढ़ा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब आपको एक इंफॉर्मेशन और याद रखना है, दिस ऑल मेथड्स, यहाँ जितने मेथड हैं, that all methods are mainly for chloro and bromo. These all methods are not common for fluoro and iodo. ये सारे मेथड जो लिखे हुए हैं, that is not common for fluoro and iodo. This is the common method for, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है X can be chloro bromo, यहाँ पे भी लिखा हुआ है X can be bromo iodo। तो जहाँ पर्टिकुलर लिखा हुआ है, मतलब पहले ये जान लीजिए कि सारे 6 रिएक्शन जो हैं, ऑल द 6 रिएक्शंस आर ओनली यूज टू प्रिपेयर द क्लोरो और ब्रोमो। फ्लोरो और आयोडो के लिए ये मेथड नहीं है या यूज नहीं किया जाता है। फॉर फ्लोरो एंड आयोडो यू रिक्वायर वेरी स्पेशल कंडीशन, क्योंकि फ्लोरो का रिएक्शन बहुत स्लो होता है और आयोडो का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। यस्टरडे यू हैव सीन कि फ्लोरो की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, आयोडो की बॉन्डिंग वीक होती है। तो फ्लोरो और आयोडो बनाने के लिए हमको स्पेशल कंडीशन चाहिए होता है। सो रिमेंबर दिस कि एक्स का मतलब, इसमें जहाँ जहाँ एक्स लिखा है, दैट एक्स मीन्स क्लोरो या ब्रोमो, आप क्या मानेंगे, दैट इज Cl और Br। यहाँ पे x है तो x मीन्स Cl और Br, F और I नहीं होगा, ठीक है, फ्लोरो और आयोडो नहीं आएगा। सो व्हाट इज हियर, व्हेन एनी एल्कोहल react with hydrogen halide in presence of ZnCl2, then it form, ठीक है, हेलो एल्केन। जब X लिखा रहेगा तो आप कहेंगे हेलो एल्केन, जब कोई पर्टिकुलर क्लोरो ब्रोमो लिखा रहेगा देन यू विल से क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, ठीक है। सो हेलो एल्केन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड देन आफ्टर यू विल राइट दिस इक्वेशन, उसके बाद आप ये इक्वेशन लिख देंगे। सो फर्स्ट इज ओवर, नाउ सेकंड इज NaBr। सो सेकंड इज हियर, मैंने यहाँ NaCl लिखा है, वहाँ NaBr दिया है, तो यू विल राइट NaCl और NaBr, ठीक है। सो सेकंड हेडिंग आप लेंगे, सब हेडिंग बाय रिएक्शन विथ NaCl और NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, केवल Cl Br ही ले सकते, कोई और नहीं लेंगे। नाउ हियर इट इज टेकन Br, तो अब क्या लिखेंगे, when any alcohol, statement when any alcohol is react with NaCl or NaBr in presence of H2SO4, when any haloalkane react with NaCl or NaBr in presence of H2SO4, then see again displacement reaction, this Br will be moved here, HSO4 will be moved here, and इसका H जो बचा और इसका OH जो बचा, that will be H2O। so ये बनाएगा RBr, फिर बनाएगा NaHSO4 और फिर बनाएगा H2O। सी देख लीजिए कौन सा पार्ट कहाँ जा रहा है, आपको बस यही याद रखना है। ROH में से OH will be removed and Br will be comes there, so it will form RBr। अब बचा OH, Na और H2SO4, from H2SO4 HSO4 will comes with Na, so it form NaHSO4, and then after OH and H that will be form H2O। so remember this, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन लॉजिक है, बेसिक यही है कि कौन किसके साथ क्या रिएक्शन कर रहा है,
सेम टाइप का रिएक्शन अगर यहाँ पे NaCl लिखा होगा, you will do with Cl. Now, so what will be your statement? Statement will be there when any alcohol react with NaCl or NaBr in presence of H2SO4, then it form क्लोरो और ब्रोमो एल्केन. यहाँ पर्टिकुलर आपको लिखना होगा क्लोरो और ब्रोमो एल्केन, क्योंकि यहाँ पे NaX नहीं है, X is not there. Particular क्लोरो और ब्रोमो is there, so क्लोरो और ब्रोमो will come. So you will write क्लोरो और ब्रोमो एल्केन is form. इतना आप स्टेटमेंट लिखेंगे. देन आफ्टर यू विल राइट दिस इक्वेशन. उसके बाद आप ये इक्वेशन लिखेंगे. सो 2R/3 देखिए PX3 दे रहा है. ठीक है, PX3 का मतलब ये वाला पार्ट है PCl3. सो X3 यानी PCl3 या Br3. सो आपको क्या करना है, यू विल राइट द हेडिंग रिएक्शन विथ PX3. थर्ड नंबर विल बी रिएक्शन विथ PX3. Here you will write statement when any alcohol react with PX3. PX3 mostly PCl3 ही आता है. PX3 लिख दीजिए या PCl3 लिख दीजिए, that's your choice. Then it form, ठीक है, if you will write Cl, if you will write Cl तो X की जगह पे आएगा Cl, आपका बनेगा RCl. देखिए क्या वर्डिंग लिखनी होती है. इफ Cl आप पर्टिकुलर लिखेंगे PCl3 तो X की जगह पे Cl आएगा. सो प्रोडक्ट केवल क्लोरो ही बन सकता है, कोई और तो हेलोजन बन नहीं सकता है. सो आपको लिखना होगा इट विल प्रोड्यूस क्लोरो एल्केन, तब ये बनाता है क्लोरो एल्केन. बट अगर आप PX3 लिखेंगे तो प्रोडक्ट में आएगा X, दैट कैन बी क्लोरो और ब्रोमो. वो क्लोरो या ब्रोमो कुछ भी हो सकता है. तो यू विल राइट देयर हेलो एल्केन और क्लोरो और ब्रोमो एल्केन. आयोडो फ्लोरो नहीं, क्लोरो और ब्रोमो एल्केन. सो स्टेटमेंट यू विल राइट. अब स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट यू विल राइट व्हेन एनी एल्कोहल रिएक्ट विथ PX3 और PCl3, दैट्स योर चॉइस, PX3 और PCl3, देन इट फॉर्म. अगर आपने PX3 लिखा है तब आप लिखेंगे हेलो एल्केन. अगर आपने PCl3 लिखा है देन यू विल राइट क्लोरो एल्केन, एंड देन आफ्टर you will write this reaction. So after this 3 are over. Now 4 to particular PCl5 ही है. So fourth heading will be there by reaction with PCl5. By reaction with PCl5 तो again statement, पहले statement लिखना है when any alcohol react with PCl5 PCl5 से रिएक्ट कर रहा है. देन अब ध्यान से देखिए होता क्या है. Cl कंफर्म Cl ही है तो Cl विल कम. सो दैट्स व्हाई इट फॉर्म क्लोरो एल्केन. ये मेथड केवल क्लोरो बनाने के लिए है, कोई और बनाने के लिए नहीं है. PCl5 कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ओनली क्लोरो एल्केन, नॉट ब्रोमो, नॉट फ्लोरो, नॉट आयोडो, ओनली क्लोरो. So when any alcohol react with PCl5 then it form chloroalkane, तब ये बनाता है chloroalkane. You will write this and then after this reaction, उसके बाद ये reaction. अब आपको देखना है कि इसमें कौन किससे रिएक्ट किया, आपको ये जानना है. then see carefully, 1Cl is removed from here and that is comes at the place of OH. एक Cl वहां से निकला, सिंगल Cl, एक Cl वहां से निकला and that replace the OH to form RCl. ठीक है, सेकेंड Cl फिर यहां से निकला and that comes with the H, केवल H, that comes with the H, so it form HCl. अब बच गया क्या, 2 Cl यहाँ से निकला तो 2 वैलेंसी इसकी फ्री हुई और यहाँ बचा ऑक्सीजन. दिस ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, सो ऑक्सीजन इज कमिंग विथ
PCl3, so it form POCl3 और ये बना दिया POCl3। सो फिर से देखिए कौन किसके साथ रिएक्ट किया। 1Cl is coming from here, that is displace the OH, so it form RCl, that is chloroalkane. Now H move with another Cl, so it form HCl. Now the O will be moved with the rest part, तो rest part बचा क्या, PCl5 was there. From PCl5 one Cl is removed out here, one Cl is removed out here, so it remain PCl3 with two valency. That two valency is completed with oxygen, so it form POCl3. so ये बना दिया POCl3. so RCl, POCl3 and HCl means आप ये भी कर सकते हैं कि 2Cl is remove out from PCl5, 2Cl वहां से निकला, उसके जगह ऑक्सीजन आ गया, वैलेंसी कंप्लीट हो गई, बन गया POCl3. आउट ऑफ 2Cl, 1Cl is move with R, another Cl is move with H. एक Cl R के साथ गया, एक Cl H के साथ गया, so it form RCl and HCl. but this method is used to prepare only chloro, not bromo, not iodo, ठीक है, not fluoro. Now this is the fourth one. Now fifth one, X2, reaction with X2. So next heading will be there, fifth number, by reaction with X2. My voice and screen are clear, Ria? Ria or yes, anyone please? Yes, sir, it is clear. Okay, thank you. Okay, thank you. If anyone have any problem, immediately inform me. So now next heading number fifth. Fifth will be there. That will be heading will be reaction with X2. In this, what will be your statement? अब statement क्या होगा, ध्यान से देखिए. When any alcohol react with X2 in presence of red P लिखा है. रेड P का मतलब है P इज फॉस्फोरस, रेड मीन्स रेड, फॉस्फोरस, ठीक है. रेड, ब्लैक, व्हाइट तीन टाइप का होता है, तो इसमें से कौन सा फास्फोरस यूज करना है, रेड फास्फोरस. फास्फोरस इज ऑफ थ्री टाइप्स, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस, जो हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट बुक में. सो red phosphorus. So here what will be used, red phosphorus. So what will be your statement? Statement will be there, when any alcohol react with halogen in the presence of red phosphorus, then it form haloalkane, तब ये haloalkane बनाएगा. एंड दिस मेथड इज स्पेशल मेथड. यहाँ लिखा है x का मतलब Br है या I है, तो यहाँ पे I या Br बनेगा, यहाँ पे क्लोरो नहीं बनेगा. क्लोरो विल नॉट फॉर्म बाय दिस मेथड. क्लोरो इस मेथड से नहीं बनेगा, ठीक है. एंड फ्लोरो भी इस मेथड से नहीं बनेगा. ओनली ब्रोमो आयोडो, जहाँ पर्टिकुलर नाम दिया है that is only for that. And most of the process is for preparation of chloro and bromo, not fluoro and iodo. फ्लोरो एंड आयोडो का स्पेशल मेथड पढ़ेंगे, जो लास्ट वाला था, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज. Now last sixth one, by reaction with, sorry not here, by reaction with SOCl2. Now we are going to discuss the last method for preparation of haloalkane from alcohol, that is by reaction with SOCl2. So next heading will be by reaction with SOCl2. In this you will write, when any alcohol react with SOCl2, फिर से देखिए वही चीज, 1Cl will be displace the OH to form RCl, another Cl will be go with H to form HCl, and O will be comes with SO, SO यहाँ बचा, O यहाँ बचा, that will form SO2. So it will form chloro. This method is only for chloro, क्योंकि हमको लेना है केवल SOCl2. तो SOCl2 तो हमेशा Cl ही रहेगा, and that Cl will form the halogen. So this method is only for chloro, not for bromo, iodo or fluoro. So C, once again, reaction with HX, this is for chloro and bromo.
रिएक्शन विथ NaBr, अगर NaBr लिखेंगे तो केवल ब्रोमो के लिए, और NaCl लिखेंगे तो क्लोरो के लिए। रिएक्शन विथ PX3, अगर PCl3 लेंगे तो क्लोरो बनाएगा, PBr3 लेंगे तो ब्रोमो बनाएगा। रिएक्शन विथ PCl5, दिस इज ओनली फॉर क्लोरो। Reaction with X2, this is only for bromo and iodo. And reaction with XoCl2, this is only for chloro. So you will write the statement, then you will write the heading. Sorry, reaction statement जो सामने लिखा है बस वही लिखना है। When any alcohol react with HX in presence of ZnCl2, then it form haloalkane. Then equation. When any alcohol react with NaBr and H2SO4, then it form bromoalkane. जब particular लेंगे तो particular नाम लिखेंगे bromoalkane. Then equation. When any alcohol react with PX3, then it form haloalkane. Then equation. When any alcohol react with PCl5, then it form chloroalkane, particular chloro. When any alcohol react with X2 in presence of red phosphorus, then it form haloalkane. Then equation. And when any alcohol react with SOCl2, then it form chloroalkane. तब ये बनाता है chloroalkane. So you will write statement, then equation. So this is for preparation of haloalkane from alcohol. Now remember these equation कि alcohol का reaction किससे किससे करा करके we can prepare the haloalkane. Now some important information from this part. इस part से important information. It is written thionyl chloride. thionyl chloride जो कहते हैं वो कहते हैं SOCl2 को. Remember this. Thionyl chloride is SOCl2. यहाँ जो लिखा है thionyl chloride, that is SOCl2. तो one question is coming there. एक क्वेश्चन आता है या कोई भी पूछता है कि out of these 6 method, which one is the best method for preparation of haloalkane from alcohol? इन 6 methods में से which one method is the best method for preparation of haloalkane from alcohol? इनमें से बेस्ट मेथड कौन है? देन बेस्ट मेथड इज दिस with SOCl2. The reaction with SOCl2 of alcohol is the best method for preparation of haloalkane. क्वेश्चन आता है why, फिर अराइज होता है why. बेस्ट आप इसको कह रहे हैं क्यों? रीजन ध्यान से देखिए. Out of these all reactions, this is the reaction in which 3 products are formed. रीजन वो 3 प्रोडक्ट नहीं है, 3 प्रोडक्ट आर फॉर्म, एंड आउट ऑफ दैट 3 प्रोडक्ट द 2 प्रोडक्ट्स आर गैस. ये 2 प्रोडक्ट क्या होते हैं? गैस होते हैं. एंड ये लिक्विड है, तो ये 2 प्रोडक्ट SO2 और HCl गैस होते हैं, गैस के फॉर्म में बनते हैं. एंड इससे क्या फायदा है? गैस के फॉर्म में बनते तो फिर दिमाग में आता इससे क्या फायदा है? द बेनिफिट इज दिस कि जब ये रिएक्शन होगा तो कंटेनर में ये 3 चीजें बनेगी, बस 3 चीजों में से 2 आर गैसेस, सो दे विल बी escape आउट. ये दोनों वहां से निकल जाएंगी. वी विल अप्लाई द एनी ट्यूब देयर, सो थ्रू दैट ट्यूब दे विल बी रिलीज आउट, escape आउट फ्रॉम देयर. सो कंटेनर में हमारा केवल क्या बचेगा? केवल haloalkane. उसको प्यूरिफाई नहीं करना पड़ेगा, मतलब सेकंड स्टेप प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ेगी. बाकी इसमें बोथ आर लिक्विड, तो हमको बनने के बाद रिफाइनिंग करना होगा. इन दिस बोथ आर, ऑल 3 आर लिक्विड, सो रिफाइनिंग करना पड़ेगा. इन दिस बोथ आर लिक्विड, रिफाइनिंग करना पड़ेगा. इन दिस बोथ आर लिक्विड, रिफाइनिंग करना पड़ेगा. इसमें साथ में वाटर बनता है, उसको भी रिफाइन करना पड़ेगा. इसमें पूरा रिएक्शन नहीं दिया है, इसके साथ H2OH जो होता है वो वाटर बनाता है. And in this only our main product is in liquid form and rest are in gaseous form. तो वही चीज यहाँ बता रहा है कि thionyl chloride is preferred among these all because in this the other 2 products are escapable gases. बाकी जो 2 प्रोडक्ट है वो escapable gases है, मतलब वो गैस फॉर्म में होते हैं और इजिली रिमूव आउट हो जाते हैं.
पहला नोट, these all information which you are seeing this time on your screen, 1 2 3 4, these all you will write in note. आप नोट हेडिंग लेकर के you will write their first number, थायोनिल क्लोराइड ब्रैकेट में SOCl2 आप लिख लेंगे, थायोनिल क्लोराइड और SOCl2, जैसे ये स्टेटमेंट लिखा है, डोंट राइट इन दिस वे, राइट इन दिस वे कि SOCl2 और थायोनिल क्लोराइड इज द बेस्ट मेथड एमंग द अबव ऑल मेथड, ठीक है, बिकॉज in this reaction 3 products are formed and out of that 3 product, yeah, in this 3 products are formed which are RCl, SO2 and HCl. Out of these 3, RCl is only in liquid form and SO2 and HCl are gaseous form, so they are escape out from the container and we will get the pure RCl in the container, हमको RCl प्योर मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट, द जो आपको फर्स्ट मेथड बताया गया था ये वाला, ठीक है, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, 1st डिग्री। 3rd डिग्री सबसे ज़्यादा जो आपको बताया गया था हेलो एल्केन, कि हेलो एल्केन जो होता है दैट इज 3 टाइप्स का होता है, 3rd डिग्री मतलब टर्सियरी, 2nd डिग्री मतलब सेकेंडरी एंड 1st डिग्री मतलब प्राइमरी। सो 3rd डिग्री इज मोस्ट एक्टिव एंड 1st डिग्री इज लीस्ट एक्टिव, ठीक है। सो रिएक्शन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विथ HX रिक्वायर ZnCl2, बट अगर टर्सियरी, ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विथ HX रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट ZnCl2 विथ टर्सियरी अल्कोहल, अगर वहां पे 3rd डिग्री अल्कोहल होगा देन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ZnCl2, वहां पे ZnCl2 नहीं चाहिए, वहां पे क्या चाहिए, HCl, concentrated HCl. So remember this, I have told you कि when any alcohol, so alcohol is also 3 types, 3rd डिग्री अल्कोहल, अगला चैप्टर हमारा अल्कोहल फिनॉल है तो वहां पढ़ेंगे, 3rd डिग्री अल्कोहल, 2nd डिग्री अल्कोहल, 1st डिग्री अल्कोहल। So it is saying कि if 1st degree or 2nd degree alcohol is there, if 1st degree or 2nd degree alcohol is there, then we required ZnCl2, but if, ठीक है, 3rd डिग्री अल्कोहल इज देयर, सो दैट इज मोर रिएक्टिव, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3rd डिग्री अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव एंड 1st डिग्री अल्कोहल इज लीस्ट रिएक्टिव। सो अगर 1st डिग्री या 2nd डिग्री अल्कोहल है then we require ZnCl2, but if 1st degree alcohol is 3rd degree alcohol is there, tertiary alcohol is there, अगर tertiary alcohol होता है then we are not required, ठीक है, ZnCl2, we required the concentrated HCl at room temperature, हमको concentrated HCl चाहिए room temperature पे। So this is about the information related with this. Now next, the above method is not applicable for the preparation of aryl halide। देखिए ये साफ साफ बता दे रहा है, एरिल हैलाइड मतलब बेंजीन वाले के लिए, these all methods are not used for preparation of haloarene, इनमें से कोई भी मेथड हेलोएरेन बनाने के लिए नहीं यूज होता है, these all methods are used for haloalkane only, ठीक है। रीजन बता रहा है कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है फिनॉल का वो पार्शियली डबल होता है, मींस जो फिनॉल आपने क्लास 11th में देखा होगा कि बेंजीन रिंग के ऊपर OH होता है, अल्कोहल लेना होगा, अगर एरोमेटिक लेना होगा तो हमको फिनॉल लेना पड़ेगा, फिनॉल इज बेंजीन कंटेन OH, तो इसमें जो बॉन्ड बेंजीन रिंग और O के बीच होता है वो पार्शियली डबल बॉन्ड होता है। So this method is the above any one method is not used, ठीक है, या आप कह सकते हैं the above there is no any one method which is applicable for the preparation of aryl halide और haloarene, मतलब बेंजीन वाला इससे नहीं बना सकते हैं। Now ये क्वेश्चन आता है,
अगर आपको आयोडो एल्केन बनाना है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि दीज ऑल मेथड्स आर मेनली फॉर क्लोरो और ब्रोमो। आयोडो के लिए ये उतना नहीं है, आयोडो के लिए बस एक जगह आपको मिला है यहाँ पर, ठीक है। सो क्या करा है कि इफ यू वांट टू प्रिपेयर द RI, आयोडो बनाना है, ठीक है, देन गुड yield ऑफ RI मे बी ऑब्टेन बाय हीटिंग एल्कोहल। तब आपको क्या करना पड़ेगा, एल्कोहल को हीट करना पड़ेगा विथ सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड। एल्कोहल को KI या NaI किसी एक के साथ हीट करना पड़ेगा, ठीक है, इन 95% फास्फोरिक एसिड, ठीक है। इसमें आप एक एसिड यूज करेंगे तो वो एसिड क्या होगा, H3PO4। एसिड विल बी H3PO4 नॉट सल्फ्यूरिक एसिड। यही क्वेश्चन पूछता है, दिस क्वेश्चन इज इन योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में है कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन और RI why we are not using H2SO4, हम H2SO4 को क्यों नहीं यूज करते हैं। तो रीजन क्या है, रीजन ध्यान से देखिए, दो रिएक्शन दिया है, एक H2SO4 के पास साथ और एक दिया H3PO4 के साथ। H2SO4 के साथ KHSO4 और HI बना रहा है, H3PO4 के साथ HI और KH2PO4 बना रहा है। इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो इट विल ऑक्सीडाइज द HI, ठीक है। रीजन क्या है, ध्यान से देखिए, रीजन इज हियर कि H2SO4 is also a good oxidizing agent। H2SO4 क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और H3PO4 वैसा नहीं है। H3PO4 इज नॉट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो होता क्या है, दोनों में जो HI बन रहा है, इफ वी विल टेक द H2SO4, अगर हम H2SO4 लेंगे देन दैट H2SO4 विल ऑक्सीडाइज द HI। वो H2SO4 इस HI को ऑक्सीडाइज करके HiO3 बना देगा, HiO3, जिससे कि जो हमको प्रोडक्ट आयोडो बनाना था वो नहीं बन पाएगा। सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडो इट इज रिक्वायर्ड कि वी विल नॉट यूज द H2SO4, हम H2SO4 नहीं लेंगे, वी विल यूज द H3PO4। एंड लिसन, दिस इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन कि why H2SO4 is not used for preparation of RI। RI के यूज के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्यों नहीं यूज करते हैं, तो आपको क्या लिखना है, बस ये लास्ट, because H2SO4 is an oxidizing agent so it will oxidize the HI formed in the reaction। जो रिएक्शन में HI बनता है ये उस HI को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करके बना देगा HiO3, सो वी विल नॉट फॉर्म द आयोडो, हम आयोडो बना नहीं पाएंगे। लेकिन H3PO3 जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, तो ये HI को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, तो हम आयोडो इससे बना लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। सो रिमेंबर, पहला क्वेश्चन पूछता है कि विच वन इज द बेस्ट मेथड, देन SOCl2 method is the best method because in this 3 products are formed. Out of that 3, the 2 products are in gaseous form, so they are escape out easily and we will get the pure chloroalkane. Next, in reaction with reaction of alcohol with HX, ठीक है, if primary and secondary alcohols are there then we require ZnCl2 as catalyst, but if tertiary alcohol is there then we require the concentrated HCl as catalyst because the third degree alcohol is most reactive than second and first. Next, any of the above method is not used for preparation of haloarine, all are used for preparation of haloalkane. And last, for
preparation of good yield of iodoalkane, ठीक है, we need to react alcohol with sodium iodide or potassium iodide in presence of 95% phosphoric acid, not H2SO4, because H2SO4 is a strong oxidizing agent or good oxidizing agent. It oxidizes the HI which form in the reaction into HiO3. ये HI को HiO3 में कन्वर्ट कर देता है. So this is about the first method of preparation of haloalkane, that is from alcohol.